Good morning, student. Welcome to the Gyan Jyoti online classes. Today we discuss English reader chapter 3 exercise. Okay. So, student, first you open your book and copy. Chapter number 3. Okay. Page number 24. First, we do tick the correct answer. See the book. Tick the correct answer. Here some picture. Okay. Then some sentences here. So first look at the book. It's clearly first you open page number 24. Mary's mouse was the same color as, and you know Mary had a little mouse. You already read. Okay. Then we have to do question answer. So first A1 number, tick the correct answer. Mary's mouse was the same color as, यहाँ पे ए है, सी है, बी होगा. ओके. सेम कलर ऑफ हील क्या है? हील होगा. हील में आप लोग को टिक करना है. नंबर सेकंड, मैरीज माउस फॉलोड हर टू buildings, apartment, school. So A number is the correct answer. Okay. A you have to tick A number. This is the correct number. This is correct option. Okay. Mary mouse followed to her school. Here you have to write school. Here you have to write hill. Okay. And 3 number. The mouse jumped on the which place? On the bed, on sofa, on the table. Okay. So C number is the right answer. So you have to tick number C. Okay. So dear student, first number B, second number A, 3 number C. You have to tick. Okay. Then after you have to do fill in the. So dear student, just we have to do another number, fill in the blanks. Okay. A2 number, page number 25, page number 25, A2 number, fill in the blanks. So just we have to understand it and do. Okay. First you write in your copy. First you open your copy, English reader. Okay. One number, Mary had a dash mouse. So we have to use little mouse. Little mouse is the correct answer. Okay. So just we use little. छोटा चूहा. ठीक है. Mary had a little mouse. Okay. So to complete this sentence. Then second number, mouse food was white and small. So here we have to put food. Then sentence is completed. Mouse food was white and smooth. Mouse का जो food है वो white और smooth है. Okay. So just we use food. Then third number, it followed her to school one day. Okay. It followed her to school one day. Okay. Followed यहाँ पे use करेंगे. Okay. So sentence is completed. It followed her to school one day. एक दिन क्या हुआ है? चूहा जो है फॉलो करते चली गई. ठीक है. स्कूल को. फोर्थ नंबर, इट्स जंप ऑन द टीचर डेस्क. और जैसे ही चूहा गई तो टीचर का जो डेस्क रहता है, टेबल जो रहता है, वहाँ पे जंप करता है. सो वी यूजिंग हियर जंप, JUMP. ओके. जस्ट यू राइट. ओके. So it jumped on the teacher's desk. Okay. Number 5, the teachers scrambled and ran. The teachers scrambled and ran. टीचर जो है डर गई और दौड़ने लगी. ठीक है. कोई भी अगर कोई चीज आ जाता है, हमको अगर डरा देते हैं तो हम लोग जंप कर देते हैं या दौड़ते चले जाते हैं. So here same situation. So the teachers scrambled and ran. Okay. So one number, first you have to put little, then second food, third number following, fourth number jump, and 5 number scramble. Okay.
So just you write correct answer, correct sentence. Okay. So this one very important for you. Okay. So write clearly and positively. Okay. Then we do next number. So dear student, just A3 number. Can you guess what made some mouse eat its food? Okay. One number. माउस क्या खाते हैं? वन नंबर, टू नंबर, ये दोनों खाते हैं, ये खाते नहीं हैं. ओके. सो जस्ट वी डू अनदर नंबर. लेट्स सी ब्लैक बोर्ड. ओके. सो डियर स्टूडेंट, अनदर नंबर वी हैव टू डू सर्कल द थिंग्स दैट पेयर अप विद दिस वर्ड. जो यहाँ पे दिया गया है, सर्कल द those words are the pairing socks, needle, lock. ओके. इसमें से हम लोग को जो सही लगता है, जैसे तीन यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है. जस्ट यू सी, यहाँ पे आपको देखना है कि कौन सा सही है. ठीक है. उसके साथ पेयर करना है, उसके साथ मिलान करना है. ठीक है. सो हिंदी मीन्स मिलान करना. ठीक है. सॉक्स, सॉक्स जो हम पहनते हैं शू के साथ. So here we have to circle it shoe. What? Shoes. ये होगा right answer. Okay. फर्स्ट नंबर का socks, shoes. Okay. तो फर्स्ट नंबर कंप्लीट हो गया. आपका socks और shoe पैडिंग है दोनों. शू अगर पहनते हैं तो हम लोग को socks पहनना जरूरी है. socks पहनेंगे तो shoe पहनना जरूरी है. Okay. So just you circle shoe. Okay. First number is completed. Then number 2, needle. Needle जो छुंची बोलते हैं, नहीं क्या? needle जो है वो किसके साथ पेयर होगा? thread, paper, cloth. Just you have to think किसके साथ? thread. needle कुछ सिलाई करना है. ठीक है. तो हम लोग को क्या चाहिए? थ्रेड चाहिए. क्या चाहिए? थ्रेड. नीडल, थ्रेड. थ्रेड है राइट. ओके. ना पेपर होगा ना क्लॉथ. नीडल जो है थ्रेड के साथ ही कॉम्बाइंड या मैचिंग होगा. नीडल के बिना थ्रेड नहीं, थ्रेड के बिना नीडल नहीं. एक दूसरे से ये जो है पेयरिंग होके रहेगा. ठीक. सो नीडल, थ्रेड. नंबर 3, लॉक, ताला. हिंदी की मीनिंग से ताला. डाई, डोर, की. इसमें आप देख रहे हो लॉक डाई भी नहीं हो सकता, डोर भी नहीं हो सकता, की. व्हाट? लॉक किसके साथ मैचिंग होगा? की. सो जस्ट यू हैव टू डू और सर्कल की. ओके. की जो है लॉक का सही थिंग्स है. ओके. की के बिना लॉक नहीं, लॉक के बिना की नहीं. ओके. सो जस्ट यू राइट इन योर कॉपी number 3 number and point out or circle key. Okay. This is the right answer. number 4, fork. जो कांटे टाइप का चम्मच बोला जा सकता है. ठीक है. हम लोग जो सैंडविच या मैगी कुछ खाते हो, बच्चे को बहुत पसंद है. ठीक है. सो फॉर्क यहाँ पे क्या होगा? प्लेट, बॉल, नाइफ. कौन सा सही आंसर होगा? ये है नाइफ. ओके. फॉर्क, नाइफ. ओके. सो जस्ट यू डू सर्कल. सो डियर स्टूडेंट, फर्स्ट अगेन आई रिपीट, सॉक्स, शूज सही आंसर है. नीडल का थ्रेड सही आंसर है. लॉक का सही आंसर है. की एंड फॉर्क का सही आंसर है नाइफ. सो जस्ट यू हैव टू सर्कल शूज, थ्रेड एंड की, नाइफ. ये चारों का आप लोग सर्कल करना है. ठीक है. देन यू हैव टू डू नेक्स्ट नंबर. सो डियर स्टूडेंट, जस्ट वी डू अनदर नंबर. मैच दिस वर्ड विद देयर ऑपोजिट. यहाँ पे 5 जो वर्ड्स दिख रहे हैं, इसका ऑपोजिट हम लोग को लिखना है. ठीक है. 1 2 3 4 5.
5 का ऑपोजिट हम लोग लिख रहे हैं। जस्ट यू थिंक क्या हो सकता है? डर्टी यानी कि बहुत गंदा, उसका क्या होगा? द ऑपोजिट वर्ड्स इज डर्टी, क्लीन। व्हाट? क्लीन। क्लीन इज द राइट आंसर। ओके, सो जस्ट यू हैव टू राइट फर्स्ट नंबर डर्टी, क्लीन, गंदा और अच्छा या साफ सुथरा, ठीक है। डर्टी, क्लीन। देन ड्राई, ड्राई का क्या होगा? सूखा, ठीक है, सूखा। उसका ऑपोजिट क्या है? वेट यानी कि गीला, ठीक है। ड्राई, वेट। सो जस्ट यू हैव टू राइट नंबर 2 नंबर ड्राई का वेट। एम्प्टी यानी कि कुछ भी नहीं, खाली जगह, ठीक है। एम्प्टी का क्या होगा? फुल। व्हाट? फुल। देन फोर्थ नंबर लव, लव का क्या होगा? ठीक है, प्यार करना और उसका हेट यानी कि घृणा करना। ओके, सो ऑपोजिट लव, हेट। देन नॉइजी, नॉइजी का क्या होगा? क्वाइट। ओके, चिल्लाना और शांत, क्वाइट, ठीक है। फर्स्ट नंबर जस्ट वी हैव टू राइट डर्टी, क्लीन, ड्राई, वेट, एम्प्टी, फुल, लव, हेड, नॉइजी, क्वाइट, ठीक है। हम लोग बोलते हैं चुप रहो, शांत रहो, बहुत हल्ला करते हो, बच्चे लोग बहुत हल्ला करते हैं, उस जगह पे नॉइजी कैसे होते हैं? तो उस जगह पे टीचर्स आके क्वाइट प्लीज बोलते हैं। सो here the opposite words is quiet. Okay, so just you have to write all the number 1 to 5 number in your copy. Okay, then we do next number. Okay, so dear student, another number, underline the correct answer. Underline the correct answer. हम लोग इसमें से जो सेंटेंस है अंडरलाइन करना है। This or that star is shining brightly in the sky. In the sky. तो फर्स्ट इन द स्काई, स्काई हमसे दूर है या पास है? जो फर्स्ट आप लोग जो समझाया गया था, दिस जो है कोई सामने वाला चीज या सामने वाला पीपल या सामने वाले एनिमल्स, उसमें क्या लगेगा? दिस, ठीक है। और जो हमसे दूर रहेगा फार, ठीक है, तो उसमें क्या लगेगा? दैट। जैसे सामने वाला दूर, हम टेबल जो हमारे से दूर है तो दैट इज टेबल, दैट इज ए टेबल बोलेगा। So here this or that, okay, जो दिया गया है this लगाओ या that लगाओ। Star is shining brightly in the sky, तो sky जो है star जो है shining कर रहा है यानी वो चमक रहा है, कहाँ पे? sky। तो sky का हमारे से दूर है या पास में है? दूर है। ओके, so just we underline that. Okay, that star is shining brightly in the sky. Okay, so we using that, so we have to underline that. इसको आप लोग को अंडरलाइन करना है। that यहाँ पे अंडरलाइन करना है। that star is shining brightly in the sky. Okay, so sentence is completed। we using what? that star is shining brightly in the sky. The sentence is correct. Okay, then you have to see number 2. See, I found this or that coin on the road. On the road. See, I found this or that coin on the road. So यहाँ पे क्या लगेगा? See यानी कि सामने देखें, ठीक है। See ऐसे हम लोग जो रोड में कुछ सिक्का पड़ा है, कॉइन पड़ा है, ठीक है। See, I found this. So just be using or underline this coin on the road, जो कि अभी अभी देखा हूँ, सामने में देखा हूँ। सो कॉइन जो है सामने है रोड का, इसलिए यहाँ पे क्या लगेगा? दिस। ओके, सी आई फाउंड दिस कॉइन ऑन द रोड। द दिस इज द करेक्ट आंसर, सो वी हैव टू अंडरलाइन दिस। देन थर्ड नंबर, आई वांट टू गो दिस और दैट, दिस और दैट path even through it is
फार अवे। यहाँ पे लिखा है हम लोग को गार्डन जाना पड़ेगा, मैं गार्डन जाना चाहता हूँ, लेकिन पार्क जो है दूर है, ठीक है। दूर का चीज मैं पहले बताया था आप लोग को, क्या होगा दूर का चीज, क्या होगा दूर अगर चीज में रहे तो क्या लिखेंगे दैट, सो वी हैव टू यूजिंग दैट। आई वांट टू गो दैट पार्क, व्हिच पार्क, दैट पार्क, इवन थो इट इज फार अवे। मैं पार्क जाना चाहता हूँ, वो दूर है, इसलिए हम लोग क्या दूर का चीज आप लोग को पता है क्या लगाना है दैट, ओके। सामने का चीज दिस, ओके। सो आई वांट टू गो दैट पार्क इवन थो इट इज फार अवे, okay. So dear student, 1 number, 2 number, 3 number is already completed, okay. First number we have to using that, then second number this, then third number that, okay. Just you have to write all the number, okay. Then another number, fourth number we have to do, okay. So dear student, we have to do fourth number, okay. It's last number. This or that, it's the old church. If we walk, it will take us 10 minutes to reach. अगर हम लोग ओल्ड चर्च जाने के लिए चलते हुए जाएंगे तो कितना मिनट लगेगा, 10 मिनट। कितना मिनट, 10 मिनट। यानी कि 10 मिनट लगेगा तो चर्च सामने या दूर है, जस्ट आई थिंक सो चर्च जो है दूर में है, इसलिए हम लोग क्या लगाएंगे दिस और दैट। जस्ट यू थिंक क्या लगाएंगे, दिस लगाएंगे या दैट लगाएंगे, ऑब्वियसली दैट। सो दैट इज द ओल्ड चर्च, इफ वी वॉक इट विल टेक अस 10 मिनट्स टू रीच। यानी कि हमें 10 मिनट लगेगा जाने के लिए। सो जस्ट वी हैव टू अंडरलाइन दैट इज द ओल्ड चर्च, इफ वी वॉक इट विल टेक अस 10 मिनट्स टू रीच। यानी कि 10 मिनट लगेगा तो दूर है, इसलिए हम लोग दैट लगाएंगे। दैट इज द करेक्ट आंसर, वी हैव टू अंडरलाइन दैट, ओके। सो जस्ट यू राइट इन योर कॉपी, देन यू हैव टू डू अनदर नंबर, ओके। सो डियर स्टूडेंट, जस्ट टू रीड दिस सेंटेंस अलाउड, नोट हाउ द vowel e sound, circle the words where vowel e sound same as in free, okay. जो vowel साउंड ई साउंड हमें अगर हो रहा है तो उसमें सर्कल करना है, ठीक है। फर्स्ट यू जस्ट अंडरस्टैंड कहाँ पे क्या करना है, रीड दिस सेंटेंस, इसको हम लोग को अच्छे से पढ़ना है, अलाउ में पढ़ना है, नोट हाउ द vowel ई साउंड, सर्कल द वर्ड्स, वहाँ पे सर्कल करना है, where vowel ई साउंड सेम as in free, okay. So there are 10 mangoes on the tree, okay. So यहाँ पे कौन सा जगह पे सर्कल करना है, just you have to think, there are 10 mangoes on the tree, here, okay, here we have to circle, okay. Three is the vowel sound, okay, and we have to circle it, okay. There are 10 mangoes the tree, ई साउंड है ट्री, ई साउंड हो रहा है यहाँ पे, सो जस्ट यू सर्कल एंड राइट, ओके। नंबर 2, आई क्लीन माय टीथ एवरी मॉर्निंग, आई क्लीन माय टीथ एवरी मॉर्निंग। यहाँ पे टीथ ई साउंड हो रहा है, ई साउंड हो रहा है, टीथ टीथ, यानी कि यहाँ पे आप लोग सर्कल करना है। आई क्लीन माय टीथ एवरी मॉर्निंग, हम लोग क्या है एवरी मॉर्निंग को दांत सफाई करते हैं, ब्रश करते हैं, सो आई क्लीन माय टीथ एवरी मॉर्निंग। टीथ इज द vowel sound, so we have to circle it. Number 3, a cheetah has coat on its body, cheetah, so here we have to circle it. चीता को हम लोग को सर्कल क्या करना है, सर्कल, ओके। चीता ई साउंड हो रहा है, ई वॉवेल साउंड हो रहा है, ओके। सो वी हैव टू सर्कल इट। ए चीता हैज स्पॉट ऑन इट्स बॉडी, ओके। सो वी हैव टू क्लियर 1 number 3, second number T, third number
just we have to loudly read and circle it. Then we have complete 1 to 3 number. Okay, 1 to 3 number. Then we have to do another one. Just so dear student, next we have to do fourth number and fifth number. Okay, just read the sentence. The bird lives in a nest. Here we have to sound is a, nest. नेस्ट यहाँ पे ये जो है नेस्ट है, इसलिए ये जो है आपका वॉवेल साउंड होगा. सो जस्ट यू रीड, डू नॉट अंडरलाइन बट सर्कल इट. ठीक है, इसको अंडरलाइन भी नहीं करना है, सर्कल भी नहीं करना है, आपको इस तरह से लिख के छोड़ देना है. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ई साउंड नहीं हो रहा है. द बर्ड्स लिव्स इन ए नेस्ट, ए साउंड हो रहा है. ओके, the fifth number, my father loves me. Me, e sound हो रहा है, so just you have to underline it or circle it. Okay, sorry, circle it. Father loves me, e sound हुआ, so just you have to circle it. Then sentence is completed. Okay, so fourth number you have to leave, do not circle, do not underline. Okay, जैसा है ऐसे ही रहने दो, लिखना है आपको. अब 5 नंबर को मी में सर्कल करना है. ओके, जस्ट यू गेट क्लियर, देन यू हैव टू डू अनदर नंबर. ओके, सो डियर स्टूडेंट, जस्ट सी ऑन ब्लैक बोर्ड, सी द ब्लैक बोर्ड, रीड दिस वर्ड्स अलाउड. नीचे में कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, उसको अलाउड पढ़ना है. नोट हाउ वेल आई साउंड होगा. अंडरलाइन द वर्ड्स where vowel I sound same as a mice. जैसे वर्ड यहाँ पे दिया गया है mice, I प्रोनाउंस हो रहा है I. ठीक है, mice, rice ऐसे. सो आइसक्रीम, आइस ऐसे. सो ऐसे वर्ड को हम लोग को अंडरलाइन करना है. ठीक है, यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, जस्ट यू थिंक एंड अंडरलाइन इट. ओके, और मेरे को पक्का मालूम है आप लोग जो है अच्छे आंसर देंगे. ठीक, सो जस्ट यू थिंक व्हिच इज द राइट आंसर. जो कि आई साउंड होता है, कोई भी वर्ड्स आई साउंड उसको हम लोग अंडरलाइन करना है. क्या करना है? अंडरलाइन. ओके, सो हियर इज द वर्ड राइस, डिश, आइस, मिल्क. फर्स्ट नंबर में कौन कौन सा आई साउंड हो रहा है? इसको आई साउंड हो रहा है. राइस, ये जो है आई साउंड हो रहा है, आई वॉवेल साउंड हो रहा है. ठीक है, सो ये जो है इसको हम लोग अंडरलाइन करेंगे. उसके बाद कौन सा है? आइस, ये भी आई साउंड हो रहा है. देन सेकंड नंबर, किंग स्माइल बाय किंग. स्माइल आई साउंड हो रहा है, बाय आई साउंड हो रहा है. ओके, किंग और हिल नहीं हो रहा है. ठीक है, किंग ई साउंड हो रहा है, हिल ई साउंड हो रहा है. आयरन, आयरन जो कि क्या साउंड हो रहा है? आई साउंड हो रहा है. ठीक है, उसके बाद पिक नो, टिक नो, नाइफ, नाइफ. ठीक, ये भी आई साउंड हो रहा है. ठीक है, सो जस्ट वी डू ice, rice is the right answer. Ice is the right answer. Smile is the right answer. Bite, iron, knife. इतने वर्ड्स में 1 2 3 4 5 6 नंबर जो है, जो वर्ड्स है ये आई साउंड है, बाकी जो है नहीं हो रहा. लेकिन सभी जो वर्ड्स है आप लोग को पढ़ना है. ठीक है, और उसको अंडरलाइन करना है. ओके, सो दिस नंबर आल्सो कंप्लीटेड. जस्ट यू राइट इन योर कॉपी प्रॉपर्ली. सभी नंबर को आप लोग को जो कॉपी में लिखना पड़ेगा. ओके, देन वी हैव टू डू नेक्स्ट नंबर. ओके डियर स्टूडेंट, लिसनिंग टू द ऑडियो केयरफुली एंड फिल इन द ब्लैंक्स. आपको ऑडियो जस्ट कैसे मिला होगा उसमें सुनना है आप लोग और एक उसको फिल करना है. ठीक है, जस्ट डू सम क्वेश्चन आंसर this sentence about the correct answer.
we have to choose. Okay, इसको करेक्ट आंसर हम लोग को चूज करना है. So just Anna is a good dancer or swimmer. आप लोगों को घर में लिसन करना है ऑडियो और उसमें फिल इन द ब्लैंक्स करना है. सो जो आंसर है मैं आप लोग को यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है, उसको ठीक से देखेंगे और ठीक से लिखेंगे. ठीक है, अन्ना इज ए गुड डांसर और स्विमर. सो स्विमर इज द राइट आंसर. ओके, तो यहाँ पे आप लोग को स्विमर को लिखना है. क्या करना है? लिखना है. ठीक, अन्ना इज ए डैश, यहाँ पे स्विमर पुट करना है. ठीक है, पुट अप करना है वहाँ पे. अन्ना इज ए गुड स्विमर. स्विमर इज द राइट आंसर. Number 2, Anna is speakers dash cousin or friend. Anna is speakers cousin or friend. अन्ना का जो speakers है cousin होगा या friend होगा. So here cousin is the right answer. And you have to put this blanks. Cousin is the right answer. Anna speaker cousin. Okay. Bharat speaker neighbor or cousin. दो है, दो ऑप्शन है, उसमें से चूज करना है. सो भारत इज स्पीकर्स नेबर. ये राइट आंसर. ठीक है, 1 नंबर में स्विमर, सेकंड नंबर में कजन, थर्ड नंबर में नेबर. ये तीनों कंप्लीट. ठीक है, तीनों राइट आंसर है. देन यू हैव टू डू नेक्स्ट नंबर. ओके, 4 है 5 नंबर, देन कंप्लीटेड दिस वन. ओके, so next 4th number, भारत is from पुणे और नागपुर. आप लोगों को दोनों में से एक लिखना पड़ेगा. ठीक है, so भारत कहाँ से है? नागपुर. ओके, राइट आंसर इज नागपुर. भारत इज फ्रॉम नागपुर. यहाँ पे डैश में आप लोग पुट अप करें. ओके, देन 5 नंबर, भारत इज इन क्लास 2 और 7. क्लास 2 में पढ़ाई करते हैं या 7 में पढ़ाई करते हैं? Just between 7. Okay, 7 is the right answer. So here we have to put and fill in the blanks. Okay, Bharat is in class 7. Okay, 4th number, Bharat is from Nagpur. Bharat is in class 7. Okay, so clear. Just we have to complete it. Then we have to another number do. Just see blackboard. In the audio, what do speaker do? Tick the correct answer. They introduce themselves. No, इसको रॉन्ग करना है. That talk to their neighbor. No, इसको भी ठीक करना है. ठीक है, उसके बाद they talk to their cousin. इसको भी क्रॉस करना है. They introduce their friend. ये है right. So you have to tick this one. Number 4 you have to tick. The introduce their friend. Tick. Here is the box. Then you have to tick. Okay. Then composition, draw Mary Little Mouse and color it. मैरी का लिटिल माउस को आप लोग के यहाँ बनाना है, एक माउस बनाना है और यहाँ पे कलर करना है. ओके, देन चैप्टर इज कंप्लीटेड. यहाँ पे आप लोग को अच्छा सा माउस बनाना है और उसमें कलर करना है. सो डियर स्टूडेंट, वी हैव टू कंप्लीट टुडे मैरी हैड ए लिटिल माउस चैप्टर 3 एक्सरसाइजेस कंप्लीटेड. आज जो है हम लोग एक्सरसाइज कंप्लीट कर चुके हैं. And I hope you all exercises do correctly and write correctly all the number. Okay, 1 to last number you have to complete, I think, and I hope you all do in your copy properly and repeat it in your home. Okay, so last information for you, do all the question answer, not only English. But also all the subject you have to important. So all the number you have to write in your copy correctly and hard work in your home. Okay, and nowadays very dangerous coronavirus spread all over India, all over our Odisha. So be careful and wear mask. You have to go outside, wash his hand using sanitizers, and be careful for the old person. Okay, then we have to healthy, your family is healthy. So dear student, today we complete chapter 3 exercises.
Okay, so see all the our visualization Gyan Jyoti online classes and subscribe our channel. Thank you very much.